آپ کی زوردار تالیوں میں خداوند کے خادم پاسٹر ہدایت چول بٹی کو آپ کی زوردار تالیوں میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور خداوند کا خوبصورت کلام آپ سب تک شیئر کریں. پریز ہاللویا. ہاللویا ہاللویا. خدا آپ کو برکت دے. مسیحوں میں آپ سب کو سلام. میرے گلے میں تھوڑی سی پرابلم ہے ابھی، لیکن حالانکہ مجھے مل گیا تھا میرا ساتھی، کلام سنا سکتے تھے، لیکن میں نے کہا آپ کے گھر گئے تھے تو بالکل گلا بند تھا، تو میں نے تب بھی کلام کو پریچ کیا. تو میں نے کہا اس گلے کو میں کمزوری نہیں بناؤں گا. ہاللویا. کیونکہ میرا یسوع جو ہے بڑا زورآور ہے، وہ مجھے زور بخشتا ہے. تو ایک دفعہ پھر مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آپ سب خوش ہیں؟ کون کون خوش ہے؟ دیکھتے ہیں سبھی خوش ہیں. اپنی خوشی کی زوردار تالیاں بجائیں. ایک بات کو یاد رکھیں گے، آج جو مجھے خدا نے کلام دیا نا، وہ لطف اندوز ہونے کے متعلق ہے. یعنی مسیح میں لطف اندوز ہونا، مسیح میں مزے سے رہنا، مسیح میں خوش رہنا. یعنی آج ہم انہی باتوں پر تھوڑی دیر کے لیے کلام خدا کو سیکھیں گے، جانیں گے. حالانکہ ان دنوں میں ہم جانتے ہیں کہ آج کل یہ رجحان ہر چرچ میں، ہر کلیسیا میں موجود ہے کہ کلیسیا کیا کرتی ہے ان دنوں میں؟ یعنی روزے رکھ رہی ہے. اور روزے کو بیچ میں ضرور ہم دیکھیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے اور برکت پائیں گے. تو نکالی سب سے پہلے ایک حوالہ دیکھتے ہیں. جن کے پاس بائبل ہے میرے ساتھ کھولیے. مسیح یسوع کی انجیل متی رسول کی مارفت لکھی گئی، اس کا 9 باب. خدا یسوع مسیح کی انجیل متی رسول کی مارفت لکھی گئی، اس کا 9 باب اور اس کی آیت نمبر 14 اور 15 اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے. تو میں گزارش کروں گا خدا کے خادم عابد راجہ سے کہ وہ اس تلاوت کو پڑھنے میں رہنمائی فرمائیں. ہاللویا. سنیے گا. جن کے پاس بائبل ہے اپنی بائبل پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاللویا. خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. آمین. کلام خدا کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. میرے عزیزوں، میرے بچوں جو پچھلے سنڈے ہمارے ساتھ تھے یا جنہوں نے میں بھی ہو سکتا اپنے موبائل پر یہ پیغام سنا ہو، ان کو یاد ہو کہ پچھلے سنڈے ہمارا ٹاپک کلام کا کسی کو یاد ہے؟ کسی کو جو پچھلے سنڈے کلام پریچ کیا گیا تھا، کس کس کو اس ٹاپک کے حوالے میں یاد ہے کہ ہم نے کلام میں سے کیا سیکھا یا کیا پڑھا، کیا سنا؟ بالکل ہمارا ٹاپک شکایت تھا، شکایت ہی تھا اور اسی پر ہم نے کلام کو سیکھا تھا. تو آج ہمارا کلام خدا اس سے ملتا جلتا ہی ہے. آج بھی دیکھا جائے تو ایک شکایت کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کون آیا ہے؟ یوحنا کے شاگرد. آپ سنیے غور سے باتیں. یعنی یسوع مسیح کے پاس کون ہے؟ یوحنا کے شاگرد. اور یسوع مسیح سے کیا کہہ رہے ہیں؟ شکایت کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، وجہ معلوم کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ خدا کیا وجہ ہے کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور ایک اور گروہ فریسی بھی اکثر روزہ رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تھوڑی دیر پہلے اس بات کو کرنے سے پہلے میں ایک بات مجھے یاد رہی ہے. بھائی عاشق مجھے ایک بات کر رہے تھے کہ میں نے بھائی صاحب جتنے بھی گیا ہوں
ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, बल्कि की मिले सवा से, यानी वो अपने आप को बड़ा ही कहता है। यहाँ भी देखा जाए तो यूहन्ना के शिगिर्द जो है अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि असी तेरे शिगिर्दां नालों वादा, असी सवा से अपने शिगिर्दां नूं की सिखाया ही, अपने शिगिर्दों को क्या तूने तालीम दी है कि हम भी रोजे में ठहरते हैं, और फरीसी अक्सर क्या करते हैं, रोजा रखते हैं। वजह क्या है कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यानी देखा जाए तो सवाल भी है और एक तनकीद भी है, शिकायत भी है कि तेरे शागिर्द ऐसा क्यों नहीं करते। अब ये बातें थोड़ी सी हम जरूर पीछे देखेंगे कि वो ये बात क्यों करते हैं। फरीसी एक ऐसा फिरका हम जानते हैं जो बाकी सारे फिरकों से जो यहूदियों में थे ना, ये ज्यादा मुतहरक था। यानी हम देखते हैं यहूदियों को हुक्म मिला अखबार किताब 23 बाब में 32 आयत में कि एक दिन साल में यौम कफारा, यानी एक रोजा रखना, और उस दिन अपनी अपनी जानों को क्या करना, दुख देना। यानी इसका मतलब है कि वो एक दिन साल में, यानी ऐसा हुक्म था खुदा की तरफ से कि उन्हें कहा गया था कि तुम साल में एक दिन क्या करना है, रोजा रखना है, अपनी जान को दुख देना है। कितनी देर के लिए? शाम 6 बजे से लेकर अगली शाम दूसरी शाम तक। यानी अक्सर पूछते हैं तो रोजा की डाला मैं तो असी कहने रोजा 24 घंटे का होता है, बड़े फखर है। यानी शाम से दूसरी शाम तक अपनी जान को दुख देना। और वो दिन जो होगा वो दिन भी कौन सा होगा, खास सब्बत का, जिसमें कोई काम ना करना, सिर्फ अपनी अपनी जानों को क्या करना, दुख देना। अब अजीजों, बच्चों, मेरे बेटे मेरी बेटियों, हम देखते हैं, मैंने जो टॉपिक बयान किया उस पर रहना कि मसीह में लुत्फ अंदोज होना, मजे लेना। यानी मसीह में मजे हैं, याद रखिए, लेकिन मसीह से हटकर आप जिंदगी गुजारते हो तो फिर क्या है, दुख भी है, गम भी है। यानी आज हम इस बात को सीखते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे अजीज हैं जो कहते हैं हम मसीह हैं, कहते हैं हम, लेकिन मसीह से फिर भी बाहर है। वो जानबूझकर मसीह से बाहर होकर क्या करते हैं, अपने अपने जानों को दुख तो देते हैं। यानी वो पेट बांध लेते हैं, भूख बर्दाश्त करते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, लेकिन होते वो मसीह में नहीं है, मसीह में नहीं होते। क्योंकि मसीह में हम होने के मतलब अगर देखा जाए तो वो दूसरों को ज़ाहिर करते हैं कि हम क्या है, रोजे में हैं, हम रोजा रखते हैं, लेकिन दोनों की तकलीफ तो ही नहीं रखती। अब बात ये सीखने वाली है कि क्या मसीह में अपनी जानों को दुख देने के हवाले से हमें कोई बात सीखने को मिलती है? नहीं। मसीह कहता है कि अपनी जानों को दुख दो, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जब तक मसीह आपकी जिंदगी में है, अगर मसीह आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, मसीह यीशु की तालीम आपकी जिंदगी में है, मसीह का रूह कुछ आपकी जिंदगी में है, तो तब कोई आपको ना तो गम करने की जरूरत है ना दुख सहने की जरूरत है, क्योंकि दुख उसको मिलते हैं जो मसीह से बाहर होते हैं, जो मसीह से दूर होते हैं। पुराने अदम में भी जब यहूदी किसी मुश्किल में, तकलीफ में, दुख में होते तो होता कई दफा वो क्या करते, रोजे में ठहरते। क्या करते? रोजे में ठहरते। और उनके रोजे रखने का अंदाज आप सब जानते हैं, वो क्या करते थे, एक जगह पर महसूस करते, और बहुत से कुछ ऐसा होता कि वो अपने साथ में क्या करते, खाक राख डालते ताकि पहचाने जाए कि यह बंदे दुखी नहीं, ये दुख में है। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, यीशु ने, अगर किसी ने शिगिर्दों ने पूछा होगा रोजे का मतलब, तो यीशु ने क्या कहा था कि जब तू रोजा रखे तो क्या करना, अपने सिर की करना, और तेरा मुंह भी उदास, यानी तेरे चेहरे से नजर आए कि तू उदास नहीं है, तू दुखी नहीं है। अगर रोजे में भी है तो तू मजे ले रहा है, तू मसीह में खुश है, यानी तेरे चेहरे से उदासी नजर ना आए, बल्कि तेरे चेहरे से हमेशा खुशी ज़ाहिर हो, ताकि तुझे देखकर दूसरे खुश हो।
ऐ ना उनके लिए कड़ी मुसीबत पै गई है, ये पता चले कि ये मसीह में है, इसलिए ना तो उसका चेहरा उदास है ना ये दुखी है। इसलिए मेरे अजीजों ये तनकीद करते हैं कि तेरे शिरक क्यों नहीं रोजा रखते भी। अब बात यह है, पिछली दफा हमारा प्रोग्राम था शिकायत के हवाले से, ये भी शिकायत ही कर रहे हैं। अब ये शिकायत किससे कर रहे हैं? यीशु मसीह से। किसकी कर रहे हैं? उसके शागिर्दों की। ये भी शागिर्द हैं और शागिर्दों की ही क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं कि असी उन्होंने बेहतर हाँ, असी रोजा रखने हैं, असी अज करने हैं। तो फरीसी जो है वो भी रखते हैं, तेरे क्यों नहीं रखते? फरीसी मेरे बच्चों, हम जानते हैं कि ये शरीयत के इस कदर मानने वाले थे, ये शरीयत से 2 हाथ आगे थे, ये शरीयत से 2 हाथ आगे। कई एवं गांव निकल जाते हैं, जिन्ना कहा गया होंगे ना, कई उस तो गांव लग जाते हैं। ये भी बदे हुए हैं। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा बड़ा काम किया कि इन्होंने हफ्ते में कितने दिन? 2 दिन रोजा रखना शुरू कर दिया। आप ही हुई कोलन, यानी अपनी तरफ से कि हम ज्यादा खुदा के करीब नजर आएंगे, हम हर बार 2 बारी रोजा रखांगे। लोग कहेंगे बड़े रासबाज ने, बड़े खुदा के करीब ने, इसलिए साड़ी बहुत ही वाह होएगी। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने इन्हें एक बात की थी। इन्हें जवाब क्या दिया था? उस तनकीद का, उस शिकायत का क्या जवाब दिया? किसी को फिर ना बोलिए, क्या जवाब था यीशु मसीह का जी? शाबाश, पढ़ो कोई, पढ़ो। यीशु मसीह का जवाब क्या था? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने अब जवाब दिखाना दी गल्ला का सुनिएगा। यीशु उनकी बातों का क्या जवाब दे रहा जी? जी, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? तो तुसी बेमातम करो तो हम तो यकीन ही नहीं है कि दूल्हा तुम्हारे साथ है, लेकिन इनको यकीन है कि दूल्हा इनके साथ है, इसलिए इन्हें मातम करने की जरूरत नहीं है। यानी इन्हें जरूरत है कि ये मुझ में मेरे साथ रहकर क्या करें? खुश रहे, यानी दुखी ना हो, क्योंकि मैं इनके दरमियान में हूं। यानी आज मेरी बात याद रखिए मेरे बच्चों का, ये साया अगर 62 बार पढ़े ना उसकी जाकर 5-6 आज में, तो वहां दुल्हा जो पीछे नजर आता है ना, वो खुदा नजर आता है। खुदा अपने आप को दुल्हे की सूरत में इज़हार करता है कि वो दूल्हा है। जिस तरह दुल्हा अपनी दुल्हन में क्या करता है? राहत पाता है। कलाम में लिखा है खुदा अपने लोगों में क्या रहता है? मसरूर। खुदा भी अपने लोगों में क्या रहता है? मसरूर, खुश रहता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आज इन बातों पर गौर करना है कि हम कहीं मसीह से आउट तो नहीं है। अगर मसीह में है तो रोजा हमें रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मसीह मना नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखिए, रोजा जब हम रखते हैं तो हमारा रोजा जो है ना, किसको पता होना चाहिए? खुदा को। हमें खुदा को दिखाना है कि हम खुदा तेरे साथ क्या है? कनेक्ट है। अब एक सवाल छोटा सा मैं चंद रोज से कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने भी रोजा रखा था ना यीशु। अब सवाल सबसे छोटा, यीशु मसीह ने क्यों रोजा रखा? यीशु को कोई जरूरत तो नहीं थी रोजा रखने की? जरूरत थी। यानी मैं बड़े एंजॉय करके इस कलाम को प्रीच कर रहा था। यीशु मसीह को हम देखते हैं, सुनो बच्चों गौर से। यीशु मसीह जब पैदा हुए, इनको बच्चों को चुप कराओ। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उनके पैदा होने की क्या हुई थी खबर? हर जगह, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर जगह फैल गई। यानी फिर यीशु मसीह पैदा होने के बाद हमें नजर आए हैकल में कितने दिन के? 8 दिन के। जब उन्हें ले जाया गया नाम लिखने के लिए, नाम लिखा गया, फिर हैकल में लेके गया गया। फिर यीशु मसीह 12 साल के नजर आते हैं। लेकिन 12 के बाद हमें कुछ यीशु मसीह की ज़ाहिरी सूरत बाइबल में नजर नहीं आती। हमें 12 के बाद जाकर कहां नजर आते हैं यीशु मसीह? 30 साल। कितनी देर में? अब 30 और 12 के दरमियान में एक गैप है। अब गौर से देखिए कितना गैप है। 18 साल का कैलकुलेशन कर लें, 18 साल तक एक गैप है। वो गैप जो है हमें यीशु मसीह की खिदमत में नजर नहीं आता। यीशु मसीह खिदमत करते नजर नहीं आते। अब यीशु मसीह ने, हम जानते हैं कि जब उनका वक्त आया, जब 30 साल के हो गए, तो वो अब हमें यीशु मसीह कहां नजर आए जी? किस किस को समझ है इस बात की? कहां नजर आते हैं? यरदन में,
क्या करने के लिए गए थे वहां कौन था? यूहन्ना था। यूहन्ना क्या कर रहा था? बपतिस्मा दे रहा था। और यीशु मसीह भी वहां हमें नजर आते हैं। अब यीशु मसीह क्या देखते रहे कि लोग की डुबकी लैंड दे रहे थे, मैं ना आना, लेकिन यीशु मसीह लिखा है कलाम खुदा में कि वो खुद यरदन में उतरे और यूहन्ना से कहने लगे कि क्या कर, तू मुझे बपतिस्मा दे। और जब यूहन्ना ने देखा गया कि भाई वो ही है जिदे बारे में गवाही देता फिरदा कि मैं ਉਹਦੇ कदमां दे खाक भी मैं तस्मे भी खोल सकता। और यीशु ने कहा कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुताज। उसने कहा अब ये हो नहीं दे, क्योंकि हम सबको ये रास्तबाजी पूरी करना जरूर है। मेरे बच्चों, जब लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लेकर क्या हुए पानी से बाहर आए, तो पहला काम क्या हुआ? आसमान क्या हो गया? खुल गया। इसका मतलब है पहले 18 साल जो दौर है ना, उसमें ऊपर से ना तो आवाज आई है, ना रोल को कबूतर की सूरत में उसके कंधे पर पहले आया है। अब लिखा है कि जो ही वो पानी से बाहर आए तो आसमान खुला और ऊपर से एक आवाज आई, क्या? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और कबूतर की मान लिखा है कि रूस के आप पर आकर ठहर गया। ऐसे ही है, यानी पहला काम हुआ। और दूसरी फौरन जब ऐसा काम हुआ, बात ये हो रही है यीशु को बपतिस्मा लेने के बाद रोजा रखना, यानी उसके बाद क्या हुआ? लिखा है कि वो रूह जो नाज़िल हुआ, लिखा है रूह से कहां ले गया? जंगल में, बियाबान में, ताकि वहां क्या किया जाए? इसका मतलब है कि मसीह यीशु अगर आजमाइश में डाले जा सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है। और हम बहुत दफा आजमाइश में फंस जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह आजमाइश में पूरे उतरे। इसलिए उसने सिखाया था दुआ करो कि हमें आजमाइश में ना डाल, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने वहां कितने दिन गुजारे जंगल में? कितनों को याद है? 40 दिन। और कलाम में लिखा है कि 40 दिन यानी उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। ऐसे ही है, उन्होंने क्या किया? फाका किया। क्या किया? कुछ नहीं खाता। 40 दिन इब्लीस नहीं पास आया। 40 दिन तक इब्लीस नहीं बोला, इब्लीस पास नहीं आया। लिखा है कि 40 दिन के बाद आखिरकार से क्या लगी? भूख लगी। और भूख लगी जो ही तो ही क्या हो गया? इब्लीस लिखा कि फौरन आ गया। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, इसका मतलब है जब तक यीशु मसीह और खुदा और रूह कुद्स आपस में जुड़े रहे, तब तक इब्लीस करीब नहीं आया, इब्लीस पास नहीं आया। जो ही यानी थोड़ा सा क्या हुआ? बदनी कमजोरी फील की गई तो इब्लीस आ गया। और इब्लीस ने फौरन आकर क्या किया? अटैक किया। क्या? किस किस को याद है कि फरमा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा क्या हो जाए? ये पत्थर, मेरे अजीजों, पत्थर रोटी बन सकती थी ना। अगर 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ सकता है तो पत्थर भी रोटी बन सकता था। लेकिन क्या था? यीशु मसीह ने इब्लीस का कहना नहीं माना, इब्लीस को जवाब दिया। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने जो जवाब दिया क्या था? इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि खुदा की हर उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है। इसका मतलब है कलाम आपकी जिंदगी में है, कलाम के साथ आप जुड़े हुए हो, कलाम आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, तो फिर आप मर नहीं सकते। आपकी भूख कलाम उठा सकता है, आपकी प्यास कलाम उठा सकता है, वो आपको जिंदा रख सकता है। और हम जानते हैं कि कलाम खुदा का कौन है? यीशु जो मुजस्सम हुआ, यानी वो आपको बचा सकता है, वो आपको जिंदगी दे सकता है। लेकिन उससे भी वहां क्या हुआ? जब वो 18 साल अरसे में उसने दोबारा अपने काम को शुरू करना था, अपनी खिदमत का आगाज करना था, जिस काम के लिए भेजा गया था, उसने तैयार होना था, तो उससे पहले खुदा के साथ वक्त गुजारना पड़ा। खुदा के साथ वक्त में यानी उसके साथ ठहरना पड़ा, ताकि वो खुदा, बेटा और रूह जो है वो क्या हो जाए? इकट्ठे हो जाए।
جن کے بغیر آج کوئی مسیح ایماندار بھی پراپر طور پر مسیح نہیں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں یہاں سوال کیا گیا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. یسوع کہتا ہے جب تک دلہا ان کے درمیان میں ہے کیا براتی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہم سارے سنیے جتنے بھی ہیں آج مسیح اپنے آپ کو مسیح کے شاگرد کہتے ہیں. یاد رکھیے کیا دلہا ہم سے جدا ہوا ہے؟ کیا دلہا اب ہم سے جدا ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے اس وقت کو وہ صلیبی مقام کو بیان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا دلہا ان سے کیا کیا جائے گا؟ جدا کیا جائے گا. اودوئے دکھی ہوں گے, اودوئے غم منائیں گے. لیکن اگر میں ان کی زندگی میں ہوں, یہ میرے ساتھ ہیں, تو پھر انہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں خوش رہنے کی ضرورت ہے. یہ خوش رہے کیونکہ یسوع مسیح جس کسی مقام پر گئے, اگر غم تھا تو کیا ہوا؟ خوشی میں بدل گیا. اگر رونا تھا تو کیا ہوا؟ خوشی میں بدل گیا. اگر موت تھی تو کیا ہو گئی؟ زندگی میں بدل گئی. یعنی ہر کم یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہوا؟ خوشی میں تبدیل ہوا. اور یسوع چاہتا ہے ہر زندگی جو اس میں ہے وہ ہمیشہ کیا رہے؟ خوش رہے. اور اپنی خوشی کا اظہار اگر وہ روزہ بھی رکھتی ہے تو اس کے چہرے سے, اس کی باڈی سے, اس کی باتوں سے غم نظر نہیں آنا چاہیے, دکھ نظر نہیں آنا چاہیے, پریشانی نظر نہیں آنی چاہیے. کیونکہ یسوع مسیح کا شاگرد یسوع جو بہت بڑا, جس نے بک بھی لکھی یعنی بڑے خطوط لکھے, وہ کیا کہتا ہے؟ خدا کا بندہ پولس کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیا رہو؟ دکھی رہو, خوش رہو. خوش رہو یعنی خوش رہنے کا وہ طریقہ بھی بیان کرتا ہے کیا؟ کہ بلا ناگا, اور جو بلا ناگا دعا کرو گے تو یسوع تواڈے ہاللویا, اور یسوع نال ہوئے گا. اور یسوع نال ہوئے گا تو پھر کوئی بھی اگر روزہ نہیں رکھتے تو بھی کوئی اس کا مشکل کام نہیں ہے. کیونکہ وجہ تو ہے دلہا جدا کیا جائے گا تو ہم دلہے کو پاس آنے کے لیے روزہ رکھیں گے. لیکن اگر وہ پاس ہے تو پھر ہمیں کوئی دکھ سہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزوں, میرے بچوں, اس بات کو یاد رکھیے مسیح میں ہمیشہ خوشیاں ہیں. مسیح ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دکھی ہو گئے ہیں, ہماری زندگیوں میں کوئی مشکل آ گئی ہے, ہماری زندگیوں میں کوئی پریشانی آ گئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ پریشانی, یہ دکھ, یہ مشکل جو ہے یہ آپ کے لیے کون کھڑی کرتا ہے؟ ابلیس. اور ابلیس کب آپ کے قریب آتا ہے, آپ کی زندگی میں آتا ہے جب تھوڑی دیر کے لیے رابطہ منقطع ہوتا ہے. رابطہ منقطع ہوگا تو ابلیس کسی بیماری کی صورت میں, آزمائش کی صورت میں, مشکل کی صورت میں, پریشانی کی صورت میں وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو آپ کے ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. وہ چاہے گا کہ آپ اپنے ٹریک سے اتر جاؤ. لیکن ہم نے ابلیس کو کیا کہنا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. کئی دفعہ ابلیس آپ کو اس مشکلوں سے نکلنے کے راستے بتائے گا کہ انج کر رہا, انج کر لے, انج ہو جائے گا, انج ہوئے گا تو اتنے پیدا ہو جائے گا, فائدے کام بتائے گا. ہم جانتے ہیں یسوع مسیح کو بھی ایک فائدہ اس نے دیا, کہتے نہیں کوشش کی تھی کیا کہ ساری دنیا کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا اگر تو جھک کر مجھے کیا کرے. بہت سارے ایماندار جھک جاندے جے, بڑے بڑے ایماندار جھک جاندے جے میرے بچوں. لیکن مسیح نہیں جھکا. یسوع نے فوراً سے کیا کیا؟ ڈانٹا. کیا کہ ابلیس, آپ کے اندر یہ پاور ہونی چاہیے کہ آپ ابلیس کو ایسا کوئی ابلیس دور ہو جا. کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو صرف اور صرف اپنے خدا کو سجدہ کر. یعنی ہم نے خدا کو سجدہ کرنا ہے, ہم نے دنیا کی چیزوں کو سجدہ, دنیا کی چیزیں پانے کے لیے کئی دفعہ ہمیں بڑے بڑے مشکل کام کرنے پڑتے ہیں. انسان لیٹ جاتا ہے, انسان چوڑا ہو جاتا ہے میرے بچوں. لیکن مسیح جو ہے وہ وقتی طور پر لگے گا شاید میں تھوڑا سا مشکل میں ہوں, لیکن یسوع کو مشکلوں میں سے نکالنا آتا ہے. وہ آپ مشکل میں ہوں گے تو آپ کو نکالے گا. اس لیے اس بات کو یاد رکھیے, مسیح ہمیشہ آپ کو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ خوش. کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ آدم کے بارے میں ہم جانتے ہیں خدا اس سے خوش دیکھنا چاہتا تھا نا. جب تک بات چیت خدا کی آدم کے ساتھ ہوتی رہی, آدم کی زندگی ایسی تھی, خوش تھی, خوشحال تھا. یہ باتیں سیکھ نہیں ہے.
जो ही राबता मुनकता हुआ, जो ही राबता टूटा तो खुशियां जाती रही, फिर गम जिंदगी में आ गए। पहला बेलियां खाता रहा है, बाद ने कहा हूं जमीन में चीरेगा तो बेली खाएगा। इसलिए याद रखिए, मसीह में रहोगे तो खुश रहोगे, अगर लुत्फ अंदोज होकर जिंदगी बसर करोगे। अगर मसीह से आउट हो जाए तो फिर जिंदगी खुशियों भरी रहेगी बल्कि दुखों भरी रहेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मातम भी करना पड़ेगा। ए मातम करते हैं तो खुदा को गुनाह करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं तो दो दो रोजे भी लाते रहते हैं। काम भी गलत करने, चलो रोजे फिर हम सही कर लेंगे, हरगिज नहीं। रोजा अगर रखते हो तो आपका तलक खुदा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। रोजा खाली पेट बांध कर रखते हो तो ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, आपके लिए भी हो सकता है बहुत सारे सवाल खड़े हो जाए, लेकिन याद रखिए हर सवाल का जवाब कौन है? यीशु मसीह। हर सवाल का जवाब यीशु है। वो कहते हैं कि जब तक बराती दूल्हा उनके दरमियान में है वो भूखे रह सकते हैं? नहीं। हम भी याद रखिए, यीशु मसीह ने भीड़ों को खाना खिलाया था ना, भीड़ को, कितनी बड़ी भीड़ को, 7,000 के लोग लिखा हुआ है, लोग करीब थे। और कितनी रोटियां? 5 तो 2 मछलियां। उसे किसी का काटा भी आई नहीं। आप भी यीशु में रहेंगे तो आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसलिए आपने मसीह में रहना है और मसीह को अपने साथ रखना है। उसका तरीका यही है। यीशु ने सिखाया था अपने शिगिर्दों को एक ही बात, क्या? जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे बच्चों, खुदा यीशु मसीह आपको इस कलाम को सिला से बरकत दीजिए। आमीन।